Hello students, hope you all are fine. This is Rekha Singhal. In this video, I am going to explain the topic articles in English. It is a very important topic and you need to understand the basic concept. Alright, and I assure you, when the topic is over, the video is over, you would be able to do this topic articles very easily. So, just pay attention and listen to the video very carefully. Watch it very carefully. Right? So here I will give you a few tips also and few rules. You will never forget this topic in your life. Is it clear? So, the topic is articles. First of all, what are articles? Okay. A, an and the are called articles. Articles are of two types, definite articles and indefinite articles. The, it is definite article, and a and an, they are called indefinite articles. So definite articles, it generally points out a particular person, place or thing, and indefinite articles, they do not point out a particular person, place or thing. Is it clear? So we are going to do it in detail. Well, first I would explain article the, the. Beta, here again very important thing is there कि it is the or the. The pronunciation is the or the. So this I am going to explain later on in this video only. Okay, it is a very very important concept you need to understand. Let us start first. Article the. The is used with unique people or objects. Like जो चीज़ें दुनिया में बिल्कुल यूनिक होती हैं, वन होती हैं, ठीक है, चाहे वो चीज़ें हो या पीपल हो, then we use article the. For example, the sky, the world, the north pole, the moon. Okay, right? Then we use article the with adjectives referring to a whole group of people, class. Like for example, the old, the young, the rich, the poor. Okay, now if I am using the old, so I am not saying talking about one old person, I am talking about the whole class. For example, the poor are not always sad. So I am talking about the whole class of the poor people. I mean the community, पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर रही हूँ. The rich are not always happy. ज़रूरी तो नहीं है ना कि यदि कोई अमीर है तो वो खुश होगा. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द होल क्लास, द होल ग्रुप, द रिच वर्ड के अंदर सब आ गए. Is it clear? Similarly, the old need to take more care of their health. The young are full of energy, and this way we can use with the group or the community article the. Hope it is clear. Now next, with names of mountains, rivers, oceans or deserts we use. For example, if I take example of the river, the Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra, the Saraswati, and the Sahara Desert, the Thar Desert, okay, the Pacific Ocean. Is it clear? So we can use, or the mountains, the जैसे कि the Aravalli Range, okay, the Mount Everest. If you are talking about the mountain ranges, then we use article the. Then next, with monuments or historical buildings, we use article the. The Taj Mahal, right? Then the Red Fort, the Eiffel Tower, this way. Then we use article the with superlative degrees. The best, the tallest, the longest. Adjectives में पढ़ा है ना? Big, bigger, biggest. So last degree is called superlative degree. Third, first is positive, second is comparative, and the third one is superlative. तो जहाँ पर भी superlative degree आती है उससे पहले हम article the use करते हैं. भूलना नहीं है इसको, okay? Then next, let us come to the next point. हाँ, with ordinal numbers. Ordinal numbers आपको पता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, इनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं. इनके साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल द लास्ट चैप्टर, द सेकंड चैप्टर, ओके, द सेकंड ओकेजन, द थर्ड बॉय इन द लाइन. सो आई एम यूजिंग आर्टिकल द विद ऑर्डिनल नंबर्स. ऑलराइट, देन वी यूज आर्टिकल द विद कंट्रीज. ओके, द नेम ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक. हर कंट्री के साथ नहीं लगता. जैसे हम नहीं बोलेंगे द इंडिया, नहीं बोलते ना, द अमेरिका. नो, हम कब बोल सकते हैं?
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें स्टेट्स वर्ड आ गया. द यूनाइटेड किंगडम, इसमें किंगडम आ गया. द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है, तो इसमें रिपब्लिक आ गया. तो जो कंट्रीज़ के साथ हम लोग किंगडम, स्टेट्स या रिपब्लिक लगता है, जो किसी के संगठन से बनती है, वी यूज़ आर्टिकल द विद देम. क्लियर. एक और एक्सेप्शन भी आती है इसमें बेटा. कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनके नेम्स प्लूरल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस, नीदरलैंड्स, हम वहाँ पर भी आर्टिकल द यूज़ करते हैं इनके साथ. द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भूलना नहीं है आपको. ओके, कीप इट इन योर माइंड फॉर एवर. और इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ के साथ हम आर्टिकल दी नहीं लगाते हैं. इज इट क्लियर? ओके, देन वी यूज़ आर्टिकल द विद द नेम ऑफ फैमिलीज़. आपने देखा है हर किसी के घर के आगे नेम प्लेट लगी होती है. द गुप्ताज, द टाटाज, द अंबानीज, द सिंगल्स, द अग्रवाल्स, द मेहताज, तो वहाँ पर लगाते हैं. देन वी यूज़ आर्टिकल द बिफोर ओनली. जैसे जहाँ पर भी ONLY ओनली वर्ड आ गया ना, हम उसके साथ भी लगाते हैं. जैसे शी इज़ द ओनली डॉटर, ठीक है, द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन. क्योंकि यहाँ पर ओनली का मतलब होता है ओनली एंड ओनली वन, सिर्फ, अकेला, इकलौता. तो वहाँ पर हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं. राइट. देन विद एनी पोस्ट, जो पोस्ट होती है, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द सुपरिटेंडेंट, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, द CEO, किसी भी पोस्ट के साथ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं. ऑलराइट. देन नेक्स्ट इज हम WHOLE, होल. बिफोर दिस वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल, ALL, हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं. कैसे? ऑल द बुक्स आर हेयर, तो हमने ऑल के बाद द लगा दिया. ऑल द बुक्स आर हेयर. ओके. देन नेक्स्ट देखो, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड. द होल, अब होल से पहले लगा दिया, ऑल के बाद और होल से पहले. वी यूज़ आर्टिकल द. वी यूज़ आर्टिकल द बिफोर होली बुक्स, जैसे कि द रामायणा, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब. क्लियर. देन वी यूज़ आर्टिकल द विद द नेम ऑफ न्यूज़ पेपर्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, the Tribune, the Economic Times, and so on. The article is always used before names of the people of various countries. The Japanese work hard, the French are known for their style and manners. Okay, the Indians, so we are using with the people. Then we use it with the names of trains, the Shatabdi Express, the Rajdhani Express, and so on. We also use the article before uncountable nouns. Okay, for example, I drank the milk that you had kept in the kitchen. Here, milk is uncountable, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो. एंड द, देखो बेटा, मैंने कहा आपसे कि यूनिक चीज़ों के साथ लगता है. मिल्क यूनिक नहीं है, बट ओके, ये अनकाउंटेबल नाउन है दैट हैज़ बीन मेड पर्टिकुलर. हम पर्टिकुलर मिल्क की बात कर रहे हैं. जैसे आपकी मम्मा ने एक गिलास दूध रखा आपके लिए कि ड्रिंक दिस ग्लास ऑफ मिल्क. ओके, एंड यू डोंट ड्रिंक दैट, यू फॉरगेट टू ड्रिंक दैट. तो बाद में मम्मी कहती हैं यू डिडंट ड्रिंक द मिल्क विच आई गेव टू यू, है ना, तुमने वो दूध नहीं पिया ना जो तुमको मैंने दिया था. तो द मिल्क हमने पर्टिकुलर हो गया, वो दैट ग्लास ऑफ मिल्क, तब लगा दिया. सिमिलरली बेटा, हम किसी भी चीज़ के साथ लगा सकते हैं जो यूनिक नहीं भी है बट पर्टिकुलर है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई हैव 4 पेन्स, ओके, एंड वन ऑफ यू गिफ्ट मी अ पेन. ओके, आपने मुझे एक पेन गिफ्ट किया, तो आई कैन यूज़ द आर्टिकल विद दैट पेन ऑल्सो. कैसे? देखो, आई लाइक द पेन विच यू गेव टू मी. तो हेयर मैंने आई हैव यूज्ड द विद द पेन बिकॉज नाउ दैट पेन हैज़ बिकम स्पेशल फॉर मी. तो विद स्पेशल थिंग्स हम आर्टिकल द लगा सकते हैं. इज इट क्लियर? द सेम वे, वन मोर एग्जाम्पल, सपोज समबडी इज आउटसाइड एट द गेट. तब तो आप कहोगे, सपोज आपके पेरेंट्स ने कहा कि जस्ट गो एंड चेक, बेल बजी है, हु इज़ देयर. तो आप कहोगे ए बॉय इज़ देयर. आप सिंपली ए बॉय लगाओगे, आर्टिकल ए यूज़ करोगे क्योंकि आप जानते नहीं हो उस लड़के को. लेकिन अगर आपकी मम्मी ने बोला या आपके पेरेंट्स ने बोला कि देखो क्या वो लड़का आ गया है जिसको आना था, तो नाउ दैट बॉय इज़ पर्टिकुलर, मतलब यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट पर्सन, आपको पहले से इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में. तो यू विल गो आउटसाइड एंड से यस मम्मा, द बॉय हैज़ कम, द बॉय, तब आपने वहाँ पर द आर्टिकल लगा दिया. राइट. सिमिलरली बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास इट बिलोंग्स टू. जैसे द डॉग
इज़ अ फेथफुल एनिमल। यहाँ पर हम डॉग, एक पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे बोलूँगी दिस इज़ ए डॉग, यहाँ पर आई एम यूजिंग आर्टिकल ए, बट इफ़ आई एम सेइंग द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द होल क्लास, कि डॉग की ये नेचर ही होती है कि डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द डॉग। द banyan ट्री इज़ ह्यूज, वी ऑल नो banyan ट्री बहुत बड़ा होता है, तो वी आर यूजिंग आर्टिकल द, कि इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, जितने भी banyan ट्रीज होते हैं वो ह्यूज ही हैं। ऑलराइट, होप आर्टिकल द इज क्लियर टू यू। एंड नाउ वेयर वी डू नॉट यूज आर्टिकल द, we do not use article the before the names of disease. Okay, then language, proper noun like the Mohan, the Paris. No, it will be wrong. Mohan lives in Paris. We cannot say the Mohan lives in the Paris. Wrong हो जाएगा. Then before abstract nouns and uncountable nouns unless they have been made particular, because wisdom comes with age. आप ये नहीं बोलोगे wisdom comes with द एज या द विजडम कम्स विद द एज, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हो किसी की। जूस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, आप जनरल बात कर रहे हो, आप पर्टिकुलर जूस की बात नहीं कर रहे हो, तो यू कैन नॉट यूज द जूस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। देन नेक्स्ट, बिफोर प्लूरल नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन ए जनरल सेंस, एनिमल्स कैन नॉट टॉक बिकॉज वी आर टॉकिंग इन जनरल अबाउट एनिमल्स। आप ये नहीं बोलोगे द एनिमल्स कैन नॉट टॉक, इट विल बी रॉन्ग। Then before the names of some materials like gold, silver, paper, etc. The bride's jewelry was made of gold. You will not say the gold. आप gold के आगे the नहीं लगा सकते. It will be wrong. The flowers were made of paper. The paper will be wrong. Then before the names of games and languages, I am learning to speak French. I am learning to speak the French. ये wrong हो जाएगा. Article the यहाँ पर use नहीं होगा. I play cricket with my friends. I play the cricket with my friends will be wrong. तो आपको ये learn करना है, ठीक? So we cannot use article the before the names of disease, language, proper nouns, country, breakfast, dinner, lunch, hospital, school. Right? So that's all about article the. Now let us come to the second type of articles, indefinite articles. Here we have a and an. A and an are called indefinite articles because they refer in general to any person, animal or thing. Means they do not refer to a particular person, animal or thing. Right? So let us learn where to use a or an. Okay. Before I explain these articles, you need to understand one thing. In both the languages, Hindi and English, we have vowels and consonants, right? There are 26 alphabets in English language, we all know. 5 are vowels, A, E, I, O, U, and rest 21 letters, B, C, D, F, G, H, right, J, K, L, M, etc. They all are consonants. Similarly, in Hindi language, we have vowels, A, E, E, U, आप सबको आता है, स्वर जिसको आप बोलते हो. Then व्यंजन, क, ख, ग, घ, न, these are व्यंजन. तो इन इंग्लिश वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इन हिंदी स्वर व्यंजन, ये आपको आता है. नाउ यूज ऑफ आर्टिकल एन, फर्स्ट आई एम टीचिंग यू. देखो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि व्हेन, बट यू नो कि व्हेन वर्ड बिगिंस विद अ वॉवल देन यू यूज आर्टिकल एन, बट दिस इज रॉन्ग. हमें वॉवल से पहले एन नहीं यूज करना, वॉवल साउंड से पहले करना है. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. Orange, elephant, ink pot, umbrella, aeroplane. Here you can see A, U, I, E, O, all the vowels. First letter is vowel. So you always write an orange, an elephant, an ink pot, an umbrella and aeroplane. Now next example is European. Here you get the first letter E. E is a vowel. जरा बोल कर देखो, यूरोपियन. अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा? य. एंड य जो है वो आपके हिंदी के स्वर जो हैं आ ई उसमें कहीं भी नहीं आता, तो ये जो है वॉवल नहीं होगा. इसके आगे यू कैन नॉट राइट एन, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अ यूरोपियन. तो बेटा आपको वॉवल साउंड देखना है, खाली वॉवल का वर्ड नहीं देखना, लेटर नहीं देखना कि यहाँ पर ई, ए, आई, ओ, यू आ रहा है. आपको उसकी आवाज़ को सुनना है एंड देन यू हैव टू राइट द आर्टिकल. इज इट क्लियर? लेट अस डू इट विद मोर एग्जाम्पल्स. यूनिवर्स,
Again, in this word universe, the first letter is U and U is a vowel. But just speak this word loudly, universe. You get the sound of U, not a. U की साउंड आ रही है. तो आपको बेटा एक सिंपल सा रूल अपने दिमाग में रखना है कि जो भी आपको वर्ड मिलता है जस्ट राइट इन हिंदी और चेक करो अगर उसका जो फर्स्ट लेटर है य, जो भी आपका फर्स्ट लेटर आ रहा है क्या वो हिंदी के जो स्वर हैं आपके अ आ ई, क्या उनमें से आता है वो कहीं पर. अगर वो वहाँ पर आता है तो इट मीन्स ये वोवल है, अदरवाइज आप यहाँ पर एन नहीं लगाओगे. ओके, सो देखो इसके लिए एब्रीविएशंस विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट लेटर बट प्रोनाउंसिएशन बिगिन्स विद वोवल, वहाँ पर आप आर्टिकल एन लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल HOD, ए, आप हिंदी में एच लिखो ए की साउंड आ रही है और वो हमारे हिंदी के स्वर में आता है तो ये क्या हो गया NHOD. MA, ST, SC, MLA, MSC, MBBS, MCOM, MPhil, यहाँ पर आप आर्टिकल एन लगाओगी. NMA, NST, NMLA, NMSC. आर यू गेटिंग? देखो, जस्ट अंडरस्टैंड द रूल. ओके, देन वी यूज आर्टिकल एन विद साइलेंट H, जैसे R, HOUR. ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट H है, लेकिन व्हेन यू से दिस वर्ड तो आप क्या प्रोनाउंस करते हो उसको, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है आवर, है ना. आर हो गया ना, तो आ ई वहाँ पर आता है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे NR. एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर H साइलेंट होता है. एन ऑनरेबल मैन. ओके, इट्स रियली एन ऑनर, ओ की साउंड आ रही है तो यहाँ पर यू यूज आर्टिकल एन. आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एन इज क्लियर टू यू. बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसे बिल्कुल भूलना नहीं है एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक. जस्ट से दैट वर्ड इफ यू गेट द साउंड ऑफ अ, ठीक है ना, जैसे AEIOU आपको वोवल साउंड आती है देन इट मीन्स यू विल राइट आर्टिकल एन, अदरवाइज आप वहाँ पर आर्टिकल एन यूज नहीं करोगे. इज इट क्लियर? सो A and N. Okay, simple beta. We use article A or N before 100,000 millions also. जैसे 100 people. Okay, 1,000 days. यहाँ पर we can use. Then we use these articles with speed, frequency and prices. जैसे कि you're driving at 90 miles an hour. I drink about 3 cups of coffee a day. ये फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल हो गया, मतलब कितनी बार पीते हो. ठीक है, देन प्राइजेस का नहीं तो इट कॉस्ट्स ₹50 a लीटर, राइट. एंड देन वी यूजुअली यूज A and N आर्टिकल विद ए नाउन टू टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसे इसके लिए देखो वन एग्जाम्पल, आई बॉट अ CD प्लेयर एंड ए TV yesterday. जैसे मैंने किसी को बताया कि मैंने कल एक टीवी खरीदा और एक CD प्लेयर खरीदा. देन दैट पर्सन आस्क्ड, was the CD player expensive? Now that person is asking about that CD player which he knows कि मैंने खरीदा है. He is asking about the same CD player. तो he can use this article the, क्योंकि वो particular हो गया. Is it clear? फर्स्ट टाइम जब हम बोलते हैं तो A लगा देते हैं और उसी को सेकेंड टाइम जब बोला जाता है तो वहाँ पर उसको because it becomes particular तो the article is used. See one more example, जैसे there is a boy standing at the gate. Call the boy. अब क्या हुआ, in first sentence I am saying there is a boy standing at the gate. Now I am talking about that boy in particular. In second कि call the boy means call that particular boy inside. So I have used article the, right? So as I told you, consonant sound से अगर हमारे वर्ड्स शुरू होते हैं देयर वी यूज आर्टिकल ए, जैसे ए बॉय, अ पेन, एन ऑनेस्ट मैन, ये वोवल साउंड है. एन ईयर, ई की साउंड आ रही है वोवल. ओके, एंड अ ईयर, बेटा ये वो ईयर हो गया हमारा बॉडी पार्ट कान. एंड दिस ईयर एक साल, 1 year 2 years. यहाँ पर ई की साउंड नहीं होती, ईयर की साउंड होती है. ओके, तो हेयर आर्टिकल ए इज यूज्ड. देन NMLA, a union. Okay, an orange. Hope it is clear now. You will be able to differentiate कि कहाँ पे आपको n लगाना है और कहाँ पे आपको a लगाना है. Simple बेटा, a is used before words begin with a consonant sound. A boy, a girl, a clock.
Okay, then we use article A with the words which start with a vowel letter but begin with a consonant sound. Sound consonant की आती है लेकिन शुरू किससे होते हैं? vowel से. Say a university, a uniform, a 1 rupee coin. देखो ONE1, O is vowel लेकिन sound किसकी आ रही है? consonant की आ रही है, तो यहाँ पे A लग जाएगा. Is it clear? Then before a singular noun beginning is a book, school dog. Even before vowel letters which don't have vowel sound, European, unit, union. इसके examples I have already given to you. So I'm sure कि there should not be any confusion now. In this topic articles, you should be perfect in this. Okay, just watch the video once or twice. Try to understand the concept. Up. The most important thing which I wanted to explain you in this video, that is, you know बेटा, many a times we say the boy, और कभी कभी आपने सुना होगा the elephant. तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आपको THA की प्रोनाउंसिएशन द करनी है या दी करनी है? For this there is a very simple rule बेटा. Whenever a word begins with a vowel sound, then you say the. जैसे कि the orange, the end, right? The honest. But if a word begins with a consonant, then the pronunciation of the is the, not the. For example, the pen, the boy, the book. Because first letter is consonant, the pronunciation is the. लेकिन अगर first letter is having vowel sound, then the pronunciation will be the. For example, देखो, the ear, the honest, the elephant, the ant. Okay, so hope it is clear कि कहाँ पर आपको द की THE की प्रोनाउंसिएशन द करनी है और कहाँ पर दी करनी है. तो एक सिंपल सा रूल है, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल साउंड तो दी बोलना है आपने उसको. इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड तो वहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन द हो जाती है. इज इट क्लियर? होप इट इज़ क्लियर. बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ. देखो बेटा, विद एनी नेम वी नेवर यूज ए. आपने कभी नहीं सुना ना ए राम, ए श्याम, ए राहुल, कभी नहीं सुना ना. लेकिन हम ए जो है आर्टिकल, दिस आर्टिकल अ वी कैन यूज विद नेम एंड देयर इज वन एक्सेप्शन. हम उसे कहाँ यूज करते हैं? ध्यान से सुनो. सी दिस एग्जाम्पल, मिस्टर राहुल इज एट द डोर. ठीक है, जैसे आपको किसी ने कहा कि दरवाजे का किसी ने नॉक किया, आप बाहर जाकर देखते हो तो आप देखते हो समबडी इज स्टैंडिंग. आपने उससे नाम पूछा, उसने कहा माय नेम इज़ राहुल. तो आप अंदर जाके क्या बताते हो? मम्मा ए मिस्टर राहुल इज एट द डोर. वहाँ पर आप ए वर्ड लगा सकते हो. इसको हिंदी में कैसे बोलोगे? कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर है. आपने कोई बोला ना, कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पर है. तो जो ये आपने कोई वर्ड बोला है, इसके लिए आप आर्टिकल ए यूज कर सकते हो. ए मिस्टर राहुल इज एट द डोर. अदरवाइज कहीं पर हम नाम के आगे यूज नहीं करते. इस पर्टिकुलर केस में यूज कर सकते हैं. मतलब अगर नाम से पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते, लेकिन जब वहाँ पर कोई लग जाता है तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज होता है. अब मिस्टर श्याम इज देयर एट द डोर, वहाँ पर आप ए वर्ड लगा सकते हो क्योंकि वो अननोन है, आप कोई के लिए यूज कर रहे हो. तो इसको आपने हमेशा अपने दिमाग में रखना है. ठीक है. वेल बेटा, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक आर्टिकल्स. इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क in the comment box, they will be answered. And just watch this video once or twice. Okay, just you should understand the basic concepts. In this video I have given you very important tips and rules. Don't forget them, keep them in your mind, and you will never make mistakes in this topic article, right beta? So don't forget to like this video, share and subscribe. That's all. Bye bye, take care, thank you. Jai